Hello everyone, this is exercise 3.3 under the chapter data handling. In this exercise, either we have to write the questions reading the given graph or to construct a graph, bar graph or double bar graph for the given information. So let us begin with question number 1. Using the bar graph to answer the following questions. Which is the most popular pet and how many students have dog as pet? These are pet animals, dogs, cats, rabbits, etc. and these are the number of students having pets. As observed from the graph, it is clear that there are 8 students having dog as pet, 10 students have cat as pets, and 2 students having rabbits as pets, hamsters 5 students and others 3 students because this is between 2 and 3. तो यहाँ पर ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा कैट को प्रेफर किया गया है, ज़्यादा बच्चे कैट एनिमल को एज पेट रख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. And in second part, how many students have dog as pet? So it is clear from the graph that 8 students have dog as a pet. Now question number 2. यहाँ पर भी एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इस बार ग्राफ की रीडिंग करके दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है. Read the bar graph given below which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. About how many books were sold in 1989, 1990 and in 1992? In which year were about 475 books sold and about 225 books sold? From the graph, it is clear that, and this is the scale given here, which represents 100 books sold by 1 centimeter height. As can be seen from the graph that the height of the bar corresponding to 1989 is approximately 1.8. So, by converting this scale, using this scale, we find that about 180 books were sold in 1989. 1.8 multiplied by 100 gives 180. इसी तरीके से 1990 में जो इस बार की ऊंचाई है वो करीब 4.75 है और 4.75 को 100 से मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड मिल जाती हैं जो कि 475 आती हैं. अतः in 1990s about 475 books were sold and in 1992 the height of this bar is approximately 2.25, which when converted using this scale gives 225 books sold in 1992. Now in part B, we have to write year. In which year were about 475 books sold and 225 books sold? From this solution, it is clear that in 1990 about 475 books were sold and in 1992 about 225 books were sold. Now third part, in which
years where fewer than 250 books sold? किन सालों में 250 बुक से कम बेची गई हैं? तो इसके लिए अगर हम ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करें तो ये हमें पता चलता है कि इट इज़ क्लियर दैट इन 1989 एंड इन 1992 fewer than 250 books were sold. जैसा कि अभी पीछे हमने देखा था कि 1989 में 180 बुक्स और 1992 में 225 बुक्स सोल्ड की गई थी, जो कि 250 से कम है. फोर्थ पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? जैसा कि पीछे भी बताया गया है कि 1989 के करस्पॉन्डिंग बार की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर से कम है और उसकी हाइट 1.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है. अतः हम इस हाइट को 100 से मल्टीप्लाई करके 180 बुक्स जो निकल करके आता है, दैट विल बी द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. सिंस द हाइट ऑफ द बार for 1989 is slightly less than 200 books, therefore we can say that about 180 books were sold in 1989. यहाँ पर लगभग हमें बताना है. अगर हम 180 ऐसे भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए उस बार की हाइट को नापना ज़रूरी है और इसके बाद उस हाइट को दिए गए स्केल से कन्वर्ट करके नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड निकालना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ. दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ. फॉर दिस वी शैल कंस्ट्रक्ट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स. One is horizontal and one is vertical. The horizontal line will be taken as x and the vertical line will be taken as y-axis. Here first information will be represented on x-axis and the second information, that is number of children, will be represented on y-axis. अब हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा. तो चूंकि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 135 है और लीस्ट वैल्यू 80 है, तो यदि हम 1 यूनिट हाइट ऑफ द बार को 10 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करें तो बनने वाले जो बार्स होंगे ना तो बहुत ऊंचे होंगे और ना ही बहुत छोटे होंगे. इस तरीके से स्केल को सेलेक्ट करना पड़ता है. अब 5th क्लास के स्टूडेंट जो कि 135 संख्या में हैं, तो 135 को रिप्रेजेंट करने के लिए बार की ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल जो सिलेक्ट किया है 10 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट हाइट, सो हाइट ऑफ द बार फॉर 5th क्लास स्टूडेंट्स विल बी 135 by 10, that is 13.5 यूनिट. फॉर 6th क्लास स्टूडेंट इट विल बी 120 by 10, that is 12 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. अब हमें ग्राफ पर इक्वल विड्थ के और इक्वल स्पेसिंग पर इनके करस्पॉन्डिंग बार्स बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. बार से बार की जो गैपिंग है वो सेम होना चाहिए हर जगह और बार की मोटाई भी कांस्टेंट होनी चाहिए. यहाँ पर 5th क्लास के लिए 135 स्टूडेंट्स को 13.5 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और उसे 135 कहेंगे. इसी तरीके से 12 सेंटीमीटर की हाइट का बार 120 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. 9.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई 95 स्टूडेंट्स और इसी तरीके से हम 10th क्लास तक के लिए बार्स बना लेंगे. दिस इज़ द रिक्वायर्ड bar graph. These are the classes, so we will write here classes and these are the number of students.
So we will write number of children. Now the questions followed are, how would you choose a scale? How would you choose a scale? आप scale को कैसे choose करेंगे? The scale is chosen in such a way that the heights of the bar should be neither too long nor too small. Here the highest value of the data is 135 and the lowest value is 80. So we can take 1 unit height of the bar to represent 10 students. So we will have the height of the highest bar as 13.5 unit, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया. Now answer the following questions. Which class has the maximum number of children and the minimum? As seen from the table as well as from the graph, it is clear that 5th class has the maximum number of children and 10th class has the minimum number of children. Find the ratio of students of class 6 to the students of class 8. Number of students in class 6 upon number of students in class 8. These are 120 and these are 100. Cancelling 0 0, then cancelling 12 and 10 by 2. 2 6 are 12, 2 5 are 10. So required ratio is 6:5. Now question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें डबल बार ग्राफ बनाना है. जिसके लिए एक सुटेबल स्केल चूज करेंगे. यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 88 है और यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 95 है. इट मीन्स कोई भी एंट्री 100 से ज़्यादा नहीं है, अतः हम 1 यूनिट लेंथ को या 1 यूनिट हाइट को हम 10 मार्क्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस तरीके से स्केल को सेलेक्ट करने में बार की जो ऊंचाई होगी ना बहुत बड़ी होगी और ना ही बहुत छोटी होगी. यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म के मार्क्स को ब्लू कलर से और सेकंड टर्म के मार्क्स को रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे. पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए बार्स बनाएंगे और इसके बाद सेकंड टर्म्स के बार जिस तरीके से दिया गया है बनाएंगे. 67 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ब्लू बार की हाइट होगी वो इस तरीके से हम निकालेंगे. 67 by 10 that is 6.7 सेंटीमीटर की हाइट रखेंगे. देन हिंदी के लिए 72 मार्क्स के लिए 72 by 10 that is 7.2 सेंटीमीटर की हाइट रखेंगे और वो 72 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा. इस तरीके से हम सभी सब्जेक्ट्स के लिए बार्स को बना लेंगे. और अब सेकंड टर्म्स के लिए जो बार्स बनेंगे इन्हीं से सटा करके बनाना है, कोई गैपिंग नहीं होगी. 70 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 सेंटीमीटर की हाइट रखना पड़ेगा. ये 6.7 सेंटीमीटर की हाइट थी और ये 7 सेंटीमीटर की हाइट है जो कि 70 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी. इसी तरीके से this is 6.5 height which will represent 65 marks and so on. The first information is taken on the x-axis and the second information is represented on y-axis. So we will write marks here and subjects here. These two means double bar graph represents English
then Hindi, then Math, Science and Social Science. This is the required bar graph for this information. Now the question followed are, in which subject has the child improved his performance the most? बच्चे ने किस सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है? इसके लिए हम इंक्रीज इन मार्क्स निकालेंगे। इन इंग्लिश जो इंक्रीज इन मार्क्स है वो सेकंड टर्म में उसकी पोजीशन 70 थी, फर्स्ट टर्म में 67 है। इस तरीके से 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। हिंदी में 65 माइनस 72 जो सेकंड टर्म में है वो 65 है, जबकि फर्स्ट टर्म में उसकी पोजीशन अच्छी थी, तो ये -7 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है। इन मैथ्स में 7 का, साइंस में 4 का, सोशल साइंस में 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। यहाँ से क्लियर होता है कि मैथ्स में जो इम्प्रूवमेंट है वो 7 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज़्यादा है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है? सबसे कम इम्प्रूवमेंट वो सोशल साइंस में हुआ है। इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट इज़ द लीस्ट। हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस डाउन की बात नहीं करते हैं। अतः यहाँ पर -7 इसका जो नेगेटिव डिफरेंस है वो इसके आंसर में यानी हिंदी नहीं आएगी। इम्प्रूवमेंट का मतलब है सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, सबसे कम बढ़ोतरी किस में हुई है, तो वो सोशल साइंस में है। देन थर्ड पार्ट, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या पहले टेस्ट की तुलना में दूसरे टेस्ट में किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है? तो क्लियरली हिंदी में जो परफॉर्मेंस है, यस, इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। किसी कॉलोनी में सर्वे किया गया और इस तरीके का डाटा कलेक्ट किया गया। फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। इसमें वाचिंग क्रिकेट 1240 persons, बास्केटबॉल 470, 510 स्विमिंग, 430 हॉकी, 250 एथलेटिक्स, जबकि पार्टिसिपेटिंग में 620, 320, 320, 250 एंड 105. These are the number of peoples. Draw a double bar graph choosing an appropriate scale, and then what do you infer from the bar graph? बार ग्राफ को देख करके, दैट इज डबल बार ग्राफ को देख करके आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं ये भी बताना है। यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है, एक वाचिंग है, एक पार्टिसिपेटिंग है। वाचिंग को ब्लैक कलर से और पार्टिसिपेटिंग को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। यहाँ पर जो चूजन स्केल है, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर है वो 1240 है और लीस्ट 105 है, सो वी कैन एज्यूम 100 persons रिप्रेजेंटिंग बाय 1 यूनिट हाइट ऑफ द बार। इसके लिए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे, जैसा कि सभी क्वेश्चंस में अभी बताया गया है। जहाँ पर डबल बार ग्राफ या बार ग्राफ बनाया गया है, हर जगह 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करना है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ डालना है, 0 डालना है, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को एक्स एक्सिस पर और सेकंड इन्फॉर्मेशन को वाई एक्सिस पर लेना है। यहाँ पर फेवरेट स्पोर्ट्स को हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और these are the number of people, so number of people will be taken in y axis. Now what would be the height representing 1240 people? So this number will be divided by 100, then we get
12.4 as the height of the bar. So हमने वॉचिंग के लिए जो ब्लैक कलर का बार यूज़ किया है उसकी हाइट को 12.4 रखेंगे, जबकि पार्टिसिपेटिंग के लिए 6.2 की हाइट होगी और ये 6.2 की हाइट 620 पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से बास्केटबॉल के लिए 470 4.7 होगा, जबकि 320 3.2 हाइट के बार्स रखेंगे इक्वल विड्थ के, इक्वल स्पेसिंग पर। हमें डबल बार ग्राफ बनाना है और चूंकि ये क्रिकेट के लिए है, ये बास्केटबॉल के लिए, स्विमिंग के लिए, ये हॉकी के लिए और ये एथलेटिक्स के लिए है, अतः उनके नीचे हम इन स्पोर्ट्स को लिख देंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल लिख देंगे और इस तरीके से हिंट भी देना है स्केल के साथ ही साथ। So this is the question number 5. Now some questions followed. From the bar graph, it is inferred that the people of the colony like the cricket the most and the athletics the least. Now next question is, which sport is most popular? Since the height of the bar representing cricket is maximum, so cricket is the most popular sport. Which is more preferred, watching or participating in sports? वाचिंग ज़्यादा पसंद करते हैं या पार्टिसिपेटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं? इसका आंसर लिखना है। सिंस द हाइट ऑफ द बार्स फॉर ईच स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग वाचिंग इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू द हाइट्स ऑफ द बार्स फॉर ईच स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग पार्टिसिपेटिंग। वाचिंग के करस्पॉन्डिंग जो बार की हाइट है वो पार्टिसिपेटिंग के करस्पॉन्डिंग बार्स की हाइट से हर जगह ज़्यादा है, अतः हम कह सकते हैं कि वाचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रेफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज। दीज आर द सिटीज and these are the maximum temperature of these cities and this is the minimum temperature of these cities. Plot a double bar graph using the data and answer the following. Here too we have to construct a double bar graph for which we will choose a scale 1 unit height of the bar by 10 degrees centigrade, means 1 unit height of the bar represents 10 degrees centigrade temperature on y-axis. This is y-axis, this is x-axis. First information, which is cities, is taken here along the x-axis and the temperatures along the y-axis. Temperatures are in degree centigrade. Here maximum temperature has been shown by red color and minimum temperature has been shown by green color. अब अहमदाबाद का जो हाईएस्ट या मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इसे इस स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो इसके बार की जो हाइट आएगी वो 3.8 सेंटीमीटर होगी। तो हमने यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर हाइट का बार बनाया है मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए और मिनिमम के लिए 2.9 सेंटीमीटर की हाइट आएगी। और इसी तरीके से सभी शहरों के लिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करने वाले बार्स को बनाया गया है। यहाँ पर सिटीज़ लिख देंगे, यहाँ पर टेम्परेचर्स लिख देंगे, स्केल लिखा हुआ है, हिंट्स लिखी हुई है और इस तरीके से ये एक डबल बार ग्राफ बन कर के तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को
देखते हैं। Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given date? These temperatures are on a particular date. Cities Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Chennai, and temperature difference. This is highest, this is lowest, highest, lowest difference is given here. Similarly, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई का जो डिफरेंस है टेम्परेचर्स में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से पता चलता है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है टेम्परेचर में वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जो कि जम्मू शहर के लिए है। क्लियरली जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। This is the conclusion from this calculation. Now second part, which is the hottest city and which is the coldest city. Hottest city means जब जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो, और कोल्डेस्ट सिटी का मतलब है जहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर हो। तो जम्मू का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो सबसे मिनिमम है। अतः हम कह सकते हैं कि जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। नाउ थर्ड पार्ट, नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस दैन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। यहाँ पर हमें ऐसे शहर का नाम लिखना है जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे शहर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर जो कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज लेस दैन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ जयपुर। जयपुर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 29 है, और अहमदाबाद का जो टेम्परेचर मिनिमम है 29 है। इस मिनिमम टेम्परेचर से बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम है। नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि जो मुंबई का टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये सभी डिफरेंस में सबसे कम है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। I hope that you have enjoyed these questions. Related to reading a given graph or constructing a bar graph or double bar graph for a given information. Thank you for watching the video.